Hello, welcome student. Today we are going to start the next lesson, Python fundamental. In previous lesson I have left few topics, how to handle Jupyter notebook and how to handle Anaconda. Just for sake of simplicity, in latter part of this whole curriculum, when it is required we will discuss then and there. So now the lesson is Python fundamental. In Python fundamental, you are going to see the fundamentals of Python programming language, its character set, token, its bare bone, what is variable, how we can use operator, how we can take input and how we produce output. So in you must have heard about IPO, that is input process output cycle. Mostly in our daily life, the computer actions are governed by IPO cycle. That is, there is certain input, certain kind of processing, and then it will give us output. But do you know how the program make IPO cycle happen? कभी सोचा है कैसे प्रोग्राम से ये काम होता है? Anywhere and everywhere you want to transform some kind of input to certain output, you have some kind of input to certain output. So at that time you must have a program. A program is set of instruction that governs the processing. In other word, a program forms the base of processing. तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, उसी में हम इनपुट लेते हैं और प्रोग्राम प्रोसेसिंग करता है, and after processing it gives us output as a result. So in this chapter we shall be talking about the basic element of Python programming. You will be learning about Python basics like character set, token, expression, statement, simple input output, etc. So first of all we are going to start with Python character set. देखो, कैरेक्टर सेट हर एक लैंग्वेज में होता है. जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन है तो ये भी एक लैंग्वेज. वैसे ही जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, जो सिंपल नेचुरल लैंग्वेज जिसको बोल रहे हैं, बोलचाल वाली लैंग्वेजेस, उसमें भी कैरेक्टर सेट होता है. लाइक हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप नेम लो, हर लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट होता है. कैरेक्टर सेट क्या होता है? सेट ऑफ अलाउएबल कैरेक्टर इन दैट लैंग्वेज. जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एट दैट टाइम ABCD कैपिटल्स एंड स्मॉल 0 1 2 3, some punctuation symbol like semicolon, comma, full stop, etc. These form the character set of that language. And at the same time, there are certain valid combination of those letters that have some special meaning, like the words of that language's vocabulary. All those are termed as character set of that language. So character set is set of valid character that a language can recognize. A character represented or represents any letter, digit or any other symbol. So every language must have a character set, which is a set of character that language can recognize. For example, if we write a in Hindi, it is valid, but if we start writing it in English, then it is invalid because it is not recognizable in that language. And so as in Python, we also have some character set that our Python language can understand. Python support Unicode encoding standard. That means Python has the following character set. The first thing is letters. The letters means capital A to Z and small a to Z. Digits 0 to 9 and its combination. Special symbol like space, plus, minus, multiplication symbol, division symbol, double multiplication symbol, backward slash, brackets, etc. So these are the special symbols. Then white spaces like blank space, tab, carries return, that means enter key, new line, form feed. These are the white space characters. And other character like Python can process all ASCII and Unicode characters as part of their data or literals. So anything that is contained within all these 5 things is termed as character set of Python.
Now, every component of a Python program is created using the character set, be it a statement or expression or other component of the program. तो जो भी चीज़ हम पाइथन में लिखेंगे बनाएंगे, वो कोई कंपोनेंट हो, वो कोई स्टेटमेंट हो क्या, या वो एक्सप्रेशन हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं बेसिक कैरेक्टर सेट के सिंबल्स से मिल के ही बनेगा. अगर इसके अलावा कुछ और हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, that means it is not recognizable by Python and hence we'll get an error. Now the next thing is tokens. So in a passage of text, individual words and punctuation marks are called tokens or lexical units or lexical elements. The smallest individual unit in program is known as token or a lexical unit. Consider the following figure that tells what a token means. For example, if we have an English sentence like Hari, exclamation, he exclaimed, we are the world champions. So here Hari, exclamation mark, comma, quotes, he exclaimed, comma, quotes, we are the world champion. All these are what? All these are tokens. So the lexical unit or token in English sentence, here two types of token are used, words and punctuation characters. Likewise in a Python program, suppose a simple Python program is given hash, that means comment, a simple program, name is equals to in double quote Anya, it is a string type of literal value, age is equals to 15, contribution is equals to 710.75, and then we have written print name aged, age, फिर double quote has contributed and then contribution. So in this case all these are formed with the help of Python character set, and every word that is given there are the token of that language. The individual lexical unit or token together make components of a program such as a statement or expression, etc. In the above program you can see these tokens like literal, keyword and punctuators are there. तो पाइथन प्रोग्राम में भी जो भी हम लिखते हैं वो कैरेक्टर सेट से बनता है, और कैरेक्टर सेट के से हमारा टोकन्स बनते हैं, और टोकन्स से मिल के हमारे स्टेटमेंट या मॉड्यूल्स बिल्ड किए जाते हैं. पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स. तो ये 5 तरीके के टोकन्स हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं. कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट one by one, that is keyword, identifier, etc. The first thing is keywords. See, I think all of you have already heard about keywords in class 9th and 10th. Now we are going to talk about it again. देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिज़र्व होते हैं, जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, और उसका यूज़ हम कहीं पे एज अ नेम या किसी चीज़ को नाम देने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. उन चीज़ों को हम बोलते हैं कीवर्ड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हाँ, हूँ, हैं, क्या, क्यों, कौन, ये सब क्या हैं? ये सब कीवर्ड्स हैं. ऐसे ही इंग्लिश में हु, द, एम, आई, आर, इज़, ये सब कीवर्ड्स हैं. तो जैसे अगर मान लो किसी का नामकरण करना है तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि कौन गुप्ता, उस किसी का नाम रख दिया, कोई गुप्ता है उसका नाम रख दिया गया कौन गुप्ता, हूँ कुमार, हाँ सिंह, हैं शर्मा. अब ऐसे तो हम नाम कर नहीं सकते, क्योंकि मतलब करने का तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इम्प्रैक्टिकल. एंड द सेम गोज़ विद अदर लैंग्वेज टू. So in Python programming language we are also having few words whose meaning is predefined, and
we use it in special conditions and we cannot use it to name other program construct, and those are called as keywords. So keywords are the word that convey special meaning to the language compiler or interpreter. These are reserved for a special purpose and must not be used as normal identifier name. Identifier मतलब वेरिएबल या जो भी चीज़ जिनको हम एक नाम दे के आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दोज आर टर्म्ड एज आइडेंटिफायर्स. इसकी डेफिनेशन दी गई है, कीवर्ड इज़ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये इसकी मीनिंग स्पेशल होती है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा रिजर्व किए गए होते हैं. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड. ये सारे कीवर्ड्स होते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में: फॉल्स, असर्ट, डेल, फॉर, इन, और, वाइल, नन, ब्रेक, एलिफ, फ्रॉम, इज, पास, विथ, ट्रू, क्लास, एल्स, ग्लोबल, लैम्डा, राइज, यील्ड एंड कंटिन्यू, एक्सेप्ट, इफ, नॉन लोकल, रिटर्न एज, डेफ, फाइनली, इम्पोर्ट, नॉट, ट्राई, और भी कई सारे होते हैं. अब इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे आप आगे चल के प्रोग्राम्स बनाते जाओगे, ये सारी चीज़ें अपने आप आपके माइंड में मेमोराइज होती जाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज़ दीज कीवर्ड्स मेनी अ टाइम ड्यूरिंग योर क्लास 11 and 12. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर्स आर आल्सो नोन एज नेम्स. तो आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम and are used as general terminology for the name given to different part of the program. तो आइडेंटिफायर हमारे प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये वो नाम होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट को देते हैं. वो पार्ट्स वेरिएबल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, कोई भी चीज़ हो सकती है. अब इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे अलग अलग लेसन्स में पढ़ेंगे. ये जो आपके ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब अलग अलग लेसन्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल ऑफ पाइथन आर बीइंग स्पेसिफाइड बिलो. तो जब भी हम आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हमें यूज़ करना होता है. उन रूल्स को अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट, एन आइडेंटिफायर इज़ एन आर्बिट्रेरली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट. तो आइडेंटिफायर कितना भी बड़ा, कितना भी लंबा सीक्वेंस ऑफ लेटर या डिजिट हो सकता है. जैसे 10 कैरेक्टर का, 20 कैरेक्टर का, 100 कैरेक्टर का, 200 कैरेक्टर का, कितना भी बड़ा नाम हो सकता है हमारे आइडेंटिफायर का. सेकेंड थिंग, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर अंडरस्कोर काउंट्स एज लेटर. तो देखिए दूसरी चीज़ ये है, पहला रूल तो ये था कि कितना भी लंबा हमारा आइडेंटिफायर नेम हो सकता है. दूसरी चीज़ कि ये हमेशा किसी लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. अंडरस्कोर को भी हम लेटर काउंट करते हैं. जैसे अगर हम कहें कि माई फाइल डेट 9_7_77 या माई फाइल _ds, ये सब वैलिड हैं. ये सब वैलिड हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं. नंबर से कभी भी कोई वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होना चाहिए. अपर केस एंड लेटर्स आर डिफरेंट एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट. मतलब दैट मीन्स ये केस सेंसिटिव होता है. कैपिटल और स्मॉल केस लेटर दोनों अलग माने जाते हैं. जैसे कैपिटल ए आपने कोई वेरिएबल बनाया और कैपिटल स्मॉल ए यूज़ करोगे तो एरर आएगा. इट मस्ट बी इन सेम केस ओनली. ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट. Next, the digits 0 through 9 can be part of the identifier except the first character. 0 to 9 ये जो डिजिट्स हैं ये भी हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता. जैसे 1A इज़ नॉट एन आइडेंटिफायर बट A1 इज़ एन आइडेंटिफायर. क्योंकि A1 A से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1A cannot be an identifier name. Identifier are unlimited in length. Case is significant, that is Python is case sensitive as it treats upper and lower case character differently. मतलब ये कितना भी लंबा होगा लेकिन यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल केस लेटर्स डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे. An identifier must not be a keyword of Python. ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो आइडेंटिफायर हम यहाँ पे बनाते हैं वो पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और आइडेंटिफायर के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। तो नाउ यू कैन सी दीज आर द वैलिड आइडेंटिफायर एंड दीज आर इनवैलिड। रीज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इनवैलिड क्यों हैं, जैसे माई फाइल CHK ये सब वैलिड हैं, लेकिन डेटा हाइफन रेक ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे हाइफन यूज़ किया गया है। 29 CLCT ये भी इनवैलिड है क्योंकि ये 29 से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ब्रेक क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, और माई डॉट फाइल में डॉट यूज़ किया गया है, इसीलिए ये भी इनवैलिड है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लिटरल्स एंड अदर in detail. Thank you.